everyone, welcome to my YouTube channel CrackZat Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and in this video I'll be talking about the MAH CET examinations. Now this examination is again a very well-known MBA exam, entrance exam, where you would see that a couple of things are in favor of the people who are from Maharashtra, number one, and number two, the people who are like really not having quant as the strong areas, then this examination is definitely for you, which will provide you an entry into one of the prestigious colleges of Maharashtra for MBA, जिनकी average package काफी अच्छी है, not bad enough to go on, and ROI के terms में अगर देखा जाए, then in that case the average fees of these colleges which accept the score of MAH CET is around 6 to 8 lakhs. तो अगर आप 6 to 8 lakhs rupees देकर अपना MBA कर रहे हो और वहां से पैकेज ऑफ अराउंड 14 15 20 के नॉट के lakhs का उठा रहे हो, then definitely this would be proving out to be a good college in terms of ROI and your placements as well. सो व्हाट कम्स इन MAH CET एग्जामिनेशन, कब होने वाला है? देखो यही तो प्रॉब्लम है इस एग्जामिनेशन की, ठीक है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का काइंड ऑफ एग्जाम, और इसी में प्रॉब्लम ये होती है कि कब होगा नहीं होगा. ऑल द टेंटेटिव डेट्स आर आउट, बट जनरली इनकी एडमिट कार्ड्स में डिले होती हैं, इनकी एग्जाम डेट्स में डिले होती है, इनकी रिजल्ट्स में तो बहुत ही डिले होती है. तो इसीलिए दिस शुड नॉट बी द ओनली ऑप्शन फॉर माई व्यूअर्स. आप लोगों के लिए MAH CET सिर्फ अकेला एग्जाम नहीं होना चाहिए जिस पे आप फोकस कर रहे हो. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन कि इसके साथ मैं दूसरे कुछ एग्जाम्स भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ. All right, so this video is completely about MAH CET examination and I will be keeping it to the point. मैं सिर्फ आपको सिलेबस समझाऊंगी कि आपको करना क्या है, प्रिपरेशन टिप्स दूंगी कि अगले साल के लिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर MAH CET तो क्या करना होगा आपको, एंड आई टेल यू द पैटर्न एज वेल. दो पैटर्न बहुत भयानक चेंज होता है इसमें, यू कांट इवन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन. 50-60% ऑफ द पेपर इज ऑलवेज ऑन यू नो हैंगिंग अराउंड कि कभी भी वो चेंज हो सकता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन सिर्फ 20 क्वेश्चंस वर क्वांट, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 50 कर दिया है. verbal में 50 questions, abstract reasoning and logical reasoning 25-75 respectively. what do you understand? इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को चाहिए कि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस के पेपर में दे आर गिविंग यू 100 मार्क्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. तो जिन्हें लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या, लॉजिकल रीजनिंग में एग्जैक्टली the core logical reasoning topics like arrangements, okay, then clocks, calendars, okay, these kind of topics, dices, abstract reasoning में हो गया आपका verbal reasoning, some sorts of non-verbal reasoning as well. Non-verbal reasoning accounts to what? The diagram based, odd one out, series, things like that. अगर इस तरह की reasoning आपका core area है, then of course you can plan out to prepare a little more on the MAH CET examination. You would see very fair results in it. And quant is generally very like lesser section, so it focuses on more on arithmetics, geometry, but the questions or the exams doesn't ask you questions on trigonometry, coordinate geometry. उस तरह के हायर एंड मैथमेटिक्स या मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर आते हैं इस एग्जाम में. So this examination is a boon for those who are actually afraid of mathematics and are very good at this normal easy level logical reasoning. ठीक है, तो वो एग्जाम तो आपके लिए है, बट हाँ, जितना इजी एग्जाम उतने कम सीट्स और उतने ही हायर परसेंटाइल्स जाते हैं. तो ये मैं डिस्कस करूंगी व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस, but right now you need to understand the pattern first. So I hope that the pattern is clear, and the overall thing you need to know is 200 questions. Okay, now we have to do 200 questions in what time? अब चलो, in the beginning I told you that इस examination में आपको dates के लिए बहुत wait करना पड़ेगा, and pattern change कभी भी हो सकता है. Proof, okay, proof 25th of December को इन लोगों ने ये रिलीज किया था कि इस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा, ये सिलेबस होगा, stuffs like that.
एंड देन सडनली आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने फिर एक नया नोटिस रिलीज किया। उसमें उस पहले नोटिस में दे मेंशन दैट हमें 200 क्वेश्चंस 120 मिनट्स यानी 2 घंटे में करना होगा। एंड देन दे अगेन रिलीज अनदर नोटिस स्टेटिंग दैट नहीं नहीं हम लोग बहुत अच्छे हैं, वी आर गिविंग यू 150 मिनट्स। तो चलो, दिस इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली, बट द थिंग इज दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर यू आर टारगेटिंग दी channels which will update you about the changes, or else you are subscribe to the newsletters of some websites जो कि ऐसे कोई मेजर अपडेट होने पर आपको मेल कर दे कुछ ऐसा। क्योंकि ये खुद से तो नहीं करने वाले आपको कुछ भी for the change of any pattern. Okay, so you have to keep a track of that as well. Now syllabus मैंने almost बता ही दिया है। इंग्लिश में syllabus grammatical based होगा, पैसेज बेस्ड भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, बट वो इजी है। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आती है ना, दैट्स नॉट इन्फरेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। क्रिटिकल रीजनिंग तो वो लोग शायद जानते भी नहीं है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है बट नॉट वेरी टफ एंड वेरी डिस्टिंक्टिव। ओके, वो इजी रहता है। इट्स लाइक मोर और लेस द आंसर इज इन द पैसेज इटसेल्फ, और अगर घुमाकर दे गिव यू अ क्वेश्चन ऑन थीम ऑफ द पैसेज और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी इजी होता है बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी like not connected to each other, so it's easy. तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो पर मिनट पर क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम भी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है वी हैव टू मूव विद द स्पीड ऑफ अ स्टॉर्म नाउ। ओके, एंड इसके लिए सिर्फ एक ही प्रिपरेशन टिप है जो मैं दे सकती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आर एस अग्रवाल की बुक तो आपने देखी होगी रीजनिंग के लिए, दैट्स कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ रीजनिंग, राइट? तो बस दे डालो, मतलब खत्म कर दो उस बुक को। ओके, इफ यू फिनिश दैट बुक यू वुड गेन सम यू नो स्ट्रेंथ की नहीं नहीं हो जाएगा मुझसे, इट्स इजी टू डू। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसके मॉक्स मिल रहे हैं या इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं, तो उससे एक प्रैक्टिस बनाइए कि उससे करना है हमें रिक्वायर्ड टाइम में, या अपने लिए ही कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए कि इतने क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में करना है और मैं ऐसे बना के करूंगा। दिस विल रियली इम्पैक्ट, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में स्पीड इज द की, एक्यूरेसी पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इसीलिए यू कैन सिंपली टेक अ चिल पिल एंड गो फॉर योर स्पीड बिल्डिंग। सिर्फ स्पीड पे काम कीजिए। ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि स्पीड कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली लाइक बी हार्मफुल फॉर यू, बट मेरे बोलने का मतलब है कि एटलीस्ट ट्राई टू पिक अप स्पीड। सो और एक चीज, वन मोर थिंग ओवर हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, लॉजिकल रीजनिंग को भी करने के ना वेरियस तरीके होते हैं। ओके, वेरियस मीन्स एक ही क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो और एक नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। तो इफ यू हैव टाइम इन हैंड यू कैन जस्ट सर्च अराउंड फॉर सम शॉर्टकट्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अभी मैं एक ही साथ इसके नेक्स्ट एग्जाम तक सारे वीडियोस दे दूं, बट आई कैन एज अ फ्रेंड रीडायरेक्ट यू टू वेयर यू नीड टू गो टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। आप YouTube पे बैंकिंग के लिए या एसएससी सीजीएल के लिए जो रीजनिंग के वीडियोस हैं उन्हें रेफर कर सकते हो। वो ऐसे ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताएंगे दैट यू विल फॉल इन लव। ओके, I know that is not useful in CAT or XAT examination, but that is thoroughly useful in examinations like TIS or like this one MAHCET। ठीक है, तो आप उन कॉलेज लाइक नॉट कॉलेजेस, उन चैनल्स को जा सकते हो, उनकी ट्रिक्स देख सकते हो। that will eventually help you in this exam, logical reasoning part, of course. Okay, these are the colleges right there on your screen. सबसे पहला कॉलेज तो JBIMS है, ये तो सबको पता ही है। और the percentile you're looking at is true, ये इतना स्कोर पे लेते हैं। इनटेक इनकी सीट की 120 सीट्स है। सारे कॉलेजेस जो एक्सेप्ट करते हैं उनका एवरेज 120 से 180 ही जाता है, ठीक है? तो आपके लिए फेयर चांस तो है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्रोलिंग डाउन, आप सारे नेम्स देख लो। ये टॉप 20 कॉलेजेस है, सिमश्री हो गया, वेलिंकर हो गया, पुम्बा हो गया, ये सब टॉप 20 कॉलेजेस है जो आपकी MACT की स्कोर्स को
कंसिडर करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई कॉलेज नहीं मिलनी है इफ यू गिव अ सीईटी एग्जाम, ओके, मिल तो जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड गेटिंग मार्क्स इन दिस एग्जाम इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। आपको जो करना है दैट इज प्रैक्टिस। इस एग्जामिनेशन का की रूल यही है कि जो भी इंसान अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, दैट पर्सन इज रियली गोइंग टू कम आउट विद ब्राइट कलर्स, ओके। सो मेक श्योर दैट अगर आपने पैटर्न समझ लिया एंड यू आर प्लानिंग, ओके, नाउ वन मोर पॉइंट टू बी एडेड हियर, नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन होती है बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड इस फेज में आकर मतलब इतना प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती जेबीआईएमएस में, वेलिंकर में, ऐसे कोई अच्छे कॉलेज में, तो आपका दिल टूट जाता है। बट हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। इस पे काफी डिबेट चल रही है दैट द परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर द नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट शुड आल्सो बी इंक्रीज, बट मेरा इसमें कोई टेक नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट। सो वट एवर इट इज, जो भी होगा दैट वुड कम अप इवेंचुअली एज अ नोटिस फॉर ऑल ऑफ अस कि सीट्स बढ़े या नहीं बढ़े, या प्रपोर्शन ऑफ नॉन महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स बढ़े या नहीं बढ़े। बट फॉर स्पेशली द महाराष्ट्रन कैंडिडेट्स ये एग्जामिनेशन तो आप मस्ट गिव एग्जामिनेशन है। सो इवन इफ यू आर नॉट रेडी, गेट रेडी एंड मेक श्योर यू just go and give the CT exam. ये उतना भी बुरा नहीं है। It's a good examination. Okay. So this was all about MAH CET. If you have any other questions or queries, you feel free to drop it into the comment section. I would love to answer it back to you. And just like this, आपके सारे suggestions and recommendations पे मैं video बना देती हूँ. So if you like this channel and this video, please like this video, share it with your friends. I want this channel to grow more because as I already mentioned in my previous videos, मैं अभी से syllabus completion पे ध्यान देने वाली हूँ, and I'm also going to make sure that मैं आपकी personality development पे भी equally काम करूँ, because for being a manager, you need to have that charismatic personality that whenever you walk into the room, people should recognize you, turn back and look at you and say, okay, now is he something kind of a boss or something? No, I'm not joking, but it's true कि जब कोई हायर पोस्ट का इंसान किसी ऑफिस में या किसी रूम में वॉक इन करता है तो ऑटोमेटिकली पता चलता है। वो पर्सनालिटी आपको खुद में डेवलप करनी है कि आप किसी से मिलो, आप किसी से बात करो तो उसे उस छोटे से कन्वर्सेशन में ही पता चल जाए that yes, you know a couple of things which the common people don't know. तो उस तरह की चीजों पे काम करने के लिए हमें अपने इंग्लिश एज वेल एज अपनी जनरल अवेयरनेस पे इक्वली काम करना होगा, एंड दिस चैनल इज completely dedicated towards that, and at the same time providing you free resources and content for studying. So make sure you subscribe to the channel and ask your friends to do that. So I'll be up with more videos. Till then, please take care and thanks for watching.